Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your Nursing Foundation faculty, and I welcome you all in the Fundamental of Nursing classes exclusively for the undergraduate students. I was eagerly waiting for this moment that when my class will begin with the undergraduate student, because there are a lot of things which I really want to share with you all. Being a nursing student myself, I literally want to share my experience with you all, so that you, during your BSc nursing course, you will not repeat those same mistakes which I did earlier during my BSc nursing phase, right? So again, today we'll be having an orientation session to nursing foundation, which is important. You should have a clear understanding about your syllabus, right? And we'll be discussing what are the important units of nursing foundation which we have to thoroughly revise for our university subjective wise examination. Okay, so before we actually begin to the orientation part, there is something which I really want to share with you all. I still remember. It just, let me just give you a brief about my journey into nursing. So it all started when my father said that I found out that nursing is a very good course. You should go for it. I have no idea about nursing. It was my father's decision. So I said yes, okay. Since you have taken all my decision, you will be right. So I have no idea. Let's just do this, right? So the moment when I was joining to this professional course, my father said three things to me. Number one, it's a very good professional course. It's kind of like noble course. Second thing which he said to me is that once you'll complete this course, once you'll have your degree, you'll get a job up, you'll get n number of job opportunity, and there is a lot of scope in nursing, and of course you'll get job security as well. So these were the words my father told me before I joined nursing as my career profession, right? And again, I hope you all can correlate with me, especially those who are in the first year nursing student. During my first year, I faced a lot of hurdle in adjusting with the environment. कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिकल पोस्टिंग है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट नर्सिंग कि नर्सिंग में क्या करना है. सो आई लिटरली फेस्ड अ लॉट ऑफ इशू कि मुझे इसी को अब जो है कंटिन्यू करना है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फर्स्ट ईयर ओवर हुआ एंड आई एंटर इनटू माय सेकंड ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग, दैट मोमेंट समवेयर आई काइंड ऑफ लाइक, मैं होता ना एक मिंगल अप हो जाना, एडजस्ट हो जाना, उस तरीके से होने लग गया था. जैसे क्लिनिकल, आई यूज टू इंजॉय माई क्लिनिकल ट्रेनिंग पीरियड, यस अ लॉट. क्योंकि वहां पे जो टाइम होता था, ट्रैवल टाइम है, यू हैव टू विजिट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, different different department you have to visit, and you will get the opportunity to learn various things, right? So similarly, slowly and gradually, or over a period of time, I started enjoying this course. ये जो बीएससी नर्सिंग का मेरा कोर्स था, उसको मैं एंजॉय करने लग गई. वेदर इट बी लाइक कमिंग आफ्टर क्लिनिकल, कमिंग बैक टू अटेंड द क्लासेस लेना हुआ हो, या कभी कैफेटेरिया में बैठ गए बातें करना हो, बिकॉज कॉलेज इज वन ऑफ द मेमोरेबल मूवमेंट of every single student. Always remember, if of course your goal and target are very important, but उसके साथ साथ the college life is very important. Never miss this particular period of your life, because you will remember by the rest of your life. आपको college हमेशा याद रहेगा. So enjoy as much as possible, but with that you have to be very clear. You have to be very focused with your future goal. आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो आई हैव नो आइडिया. ये भी नहीं पता था कि क्या करना है. बस ये था कि हाँ भाई, वी हैव टू स्टडी फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. अभी आपका, एंड दैट टाइम आई वाज ड्यूरिंग माय कॉलेज, इट वाज नॉट द सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन वाज नॉट स्टार्टेड, इट वाज ईयरली एग्जामिनेशन, राइट? तो पूरे साल में हमने क्या किया, क्लिनिकल पोस्टिंग किया,
क्लासेस लिया, एंड एट द एंड जब एग्जाम आता था, दैट वाज द पर्टिकुलर टाइम जब हम बुक निकालते थे और पढ़ना शुरू करते थे. यस, यू ऑल हर्ड मी राइट. सो वही टाइम था जब मैं, जैसे एग्जाम है, एंड वी ऑल नो इन नर्सिंग दिस इज एक्सपेक्टेड. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका जो है पूरे दिन में सिर्फ आपके एग्जाम हो रहे हैं. नो, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी होगी, and in the evening you will be having your final examination. Yes, I'm talking about final examination. ऐसा भी हुआ है कई बार कि फाइनल इंटरनल में तो ऐसा 100% होगा ही होगा. यू विल नॉट गेट दिस, जैसे होता है ना कि पूरा टाइम मिलना, बहुत 4-5 दिन मिल गए पढ़ने के लिए. नो, this will not be happening in nursing. So you have to mentally prepare yourself for this. सबसे number one point. Either it could be like morning में आपका clinical है, evening में आपका exam होगा. For final examination में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक दिन का gap मिल जाता है या फिर clinical posting नहीं होती. But majority final examination में भी you are attending the morning clinical and evening में आपका final exam होता है, right? So you have to prepare. क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था after 12th, because in 12th we are getting enough days for study, right? एग्जाम से पहले 5-6 दिन मिल जाते हैं, 1 week का गैप मिल जाता है, कभी कभी आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. एंड 12th में वी हैव अ लिमिटेड सिलेबस कि भाई ये बुक है आपकी, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी, इसी में से आएगा जो आएगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम A to Z एंड यू हैव टू कवर एवरीथिंग विद इन दैट बुक, राइट? सिलेबस है आपका CBSE का. तो लेकिन जब आई ज्वाइंड नर्सिंग, अब वहां पे जब इंटरनल एग्जामिनेशन आया फर्स्ट, सो कहीं ना कहीं आई वॉज लाइक शैटर्ड. आई वॉज वेरी एंशियस, बिकॉज अगर आप 12th में अच्छा स्कोर करते हैं एंड यू आर लाइक हार्ड कोर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, और एकदम से आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि यू आर हैविंग, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. आपका क्या है, पूरे वीक में क्लिनिकल पोस्टिंग है एंड नेक्स्ट मंडे आपका एग्जाम है, मंडे भी क्लिनिकल पोस्टिंग है, एंड ऑल यू हैव इज ओनली संडे. एंड समटाइम यू विल नॉट गेट संडे एज वेल, क्योंकि मंडे से सैटरडे कंटिन्यूस आपके एग्जाम है. अब क्या करें इसमें, कब पढ़े, टाइमिंग क्या मिला? एंड बीइंग अ डे स्कॉलर, अगेन इफ एनी डे स्कॉलर इज देयर देन दे कैन कोरिलेट मी. मॉर्निंग आपने you have to get up at around 6, which I had done this. I get up at around 6, going to the clinical posting, attending the college, because वहाँ पे परसेंटेज आपकी अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज 75% से नीचे बैठने नहीं देंगे क्लास में, राइट? कॉलेज अटेंड किया, देन क्लासेस के बाद आप घर आए, यू विल फील सो टायर्ड दैट यू विल नॉट लेफ्ट विद एनर्जी टू इवन ओपन योर बुक, बट कांट डू एनीथिंग. आपको क्या करना है, अगले दिन पेपर है, अगले दिन आपको अगेन क्लिनिकल जाना है, उसमें भी बहुत जरूरी है. क्लिनिकल नहीं जाएंगे तो मेकअप ड्यूटी लग जाएगी, right? So this is something which literally I faced during my first year, and it's very difficult for me to overcome this phase, क्योंकि मैं जो है, मैं पढ़ने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, and I was so anxious कि मैं कब पढ़ूंगी, कल मेरा एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा. कितनी बार ऐसा हुआ है, आई क्राइड एज वेल कि इन फ्रंट ऑफ माई मॉम दैट मम्मा ये कल मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगी, इस तरीके से. आई ऑल्सो फेस्ड सच टाइप ऑफ सिचुएशन. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन अगेन, जैसे आप किसी अपनी मम्मी के पास बोलते हो तो मम्मी कैन कंसोल यू, बट दे समवेयर मम्मा ने मुझे कंसोल किया, बट मुझे जो राइट गाइडेंस एंड अप्रोच मिली वो मिली मुझे सीनियर से. यस, द सेम इशू आई वॉज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड एक सीनियर वहां पे प्रेजेंट थी, तो उसने ये उसे लगा कि अभी अभी नए नए आए हुए बच्चे हैं, फ्रेशर है, लेट मी गिव देम सम insight and let me share my experience. So that time she told us that don't worry about your examination. I know in nursing you will not get enough time for your preparation. It's like आप उठे और आपने एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कब करना है? यूटिलाइज योर एंटायर डे, यूटिलाइज द मेजर सोर्स. नाउ इफ आई आस्क द मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग ऑफ जो आपके एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर ईयरली, इसका मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग क्या होता है? अब यू मस्ट बी सेइंग दैट मैम बुक इज कंसीडर एज द मेजर सोर्स, बट नो, here you are wrong. बुक जो है मेजर सोर्स नहीं होता. द मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर योर ये एंट्रेंस एग्जामिन, ये आपके लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं, ये होता है आपका क्लिनिकल पोस्टिंग. यस,
clinical posting is the major source of learning. I'm talking about fundamental of nursing only, right? So clinical posting आपका major source of learning है. जब मुझे ये पता चला, मुझे जब सीनियर ने मेरी बोला कि आप जो है अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग को ज्यादा यूजफुल बनाओ, तो आई गिव अ थॉट ऑन दिस. यस, व्हाई नॉट, क्योंकि मैं क्लिनिकल पोस्टिंग पे अपना काफी टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाती हूँ, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करना अच्छा है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेंदी पेपर आता है. तो क्लिनिकल पोस्टिंग में भी वही सारी चीजें होती हैं जो नर्सिंग फाउंडेशन में टॉपिक है. मैंने मॉर्निंग में राइस ट्यूब फीडिंग जो है सीखा, कैसे करते हैं राइस ट्यूब फीडिंग, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, बिफोर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, एंड सेम मुझे क्या करना है, पेपर के लिए पढ़ना है. सो व्हाई नॉट शुड आई यूटिलाइज माय क्लिनिकल पोस्टिंग, राइट? इस तरीके से मैंने ग्रेजुअली अपने क्लिनिकल पोस्टिंग में डेली कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग की, एंड उस जो भी न्यू लर्निंग की थी उसके लिए मैंने एक रजिस्टर बनाया. नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जब आप नर्सिंग में, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी ही चाहिए, मस्ट है. अब ये मस्ट चीज क्या है? बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, नंबर वन, आपके पास आपके रिवाइज्ड आईएनसी सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए. ये मस्ट है, अभी से निकाल के रख लो अपने पास. वेदर यू आर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस इज मस्ट. ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि एंड में सबसे ज्यादा बच्चे, कॉलेज के जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, जब एग्जाम सिर्फ 1 वीक बाद होता है, सारे बच्चे आपको एक ही जगह मिलेंगे, और वो जगह है प्रिंट आउट की शॉप. यस, यू बिलीव मी और नॉट, आप भी कभी ना कभी ऐसे ही मिलोगे, देख लेना, बिल्कुल गारंटीड मैं बोल रहा हूँ. या तो हम किसी ना किसी फ्रेंड्स के नोट्स को प्रिंट आउट कर रहे होंगे, या प्रीवियस ईयर पेपर को प्रिंट आउट कर रहे होंगे, या सिलेबस का प्रिंट आउट ले रहे होंगे, या मैम से कुछ नोट्स लेके उनको प्रिंट आउट कर रहे होंगे. हम लोग इसी तरीके से 1 वीक बिफोर एग्जामिनेशन प्रिंट आउट की शॉप में बहुत भीड़ होती है, राइट? सो इस जब आपको पता ही ऐसे करना है, सो व्हाई नॉट बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले ही रेडी होके रखना है कि फर्स्ट आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट कॉपी होना चाहिए, राइट? सेकंड, आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर, मिनिमम 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर मिनिमम है, लास्ट 5 ईयर का प्रिंट आउट होना चाहिए हर सब्जेक्ट का. ये आपके पास खुद हार्ड कॉपी होना चाहिए कि आपके पास ये पेपर है, प्रिंट आउट है 2020 का, 21 का, 22 का, लाइकवाइज. And through Nursing Next Live app, you will be getting the previous year question of different university as well. वो आपके पास मोबाइल में भी होगा, ठीक है, बट हार्ड कॉपी भी होना जरूरी है. इसके अलावा हमें क्या जरूरी है? बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट, आपके पास एक हर सब्जेक्ट का रजिस्टर होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए, जहां पे आप ये मेंशन करोगे स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या उसमें इंक्लूड करोगे. जैसे मान लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो नर्सिंग फाउंडेशन का थोड़ा अच्छा लेंदी और थोड़ा थिकनेस मोटा वाला रजिस्टर रखना, जिसमें आप जो भी डेली आप क्लिनिकल पोस्टिंग में पढ़ते हो उसको वहां पे जाके अच्छे से अपने पॉइंट में नोट्स बना लो, ताकि एंड में जब एग्जाम आए आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी है, आपने बुक से बीच में पढ़ लिया, आपने सिर्फ रिविजन के लिए अपनी वो कॉपी रख ली. रिविजन की नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस जनरली स्टूडेंट को बहुत लेट समझ में आता है कि नोट्स की वैल्यू क्या होती है, जब वो प्रिंट आउट करा रहे होते हैं दूसरे के नोट्स, और कई बार वो पढ़ते टाइम समझ में भी नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है इसने, फिर उसको जो है ऐसे बोल रहे होते हैं कि पता नहीं क्या लिख देती है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी हैंड राइटिंग, राइट? सो मेक श्योर यू हैव दीज थिंग्स, कीप रेडी विद यू. सिलेबस का प्रिंट आउट, पीवाईक्यू एंड रजिस्टर, उसको स्टार्ट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए. ड्यूरिंग माय क्लिनिकल पीरियड मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी डिपार्टमेंट में हम लोग जाते थे, तो वहां पे एक असाइनमेंट होता था डेली डायरी, डेली क्लिनिकल डायरी वी हैव टू मेंटेन. अब वहां पे उसका बहुत अच्छा फॉर्मेट होता था, डेली आर टीचर लाइक के उसको चेक करना है डेली उन्हें. जब भी हम लोग ट्रैवल, जैसे हॉस्पिटल से कॉलेज जा रहे हैं, तो बाय नून के टाइम पे जाते टाइम वो हर एक बच्चे के सीट से बुलाते थे बच्चे को और चेक करते थे बस में, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है. ये इससे पता है इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने रजिस्टर तो बनाया बट मेरी जो क्लिनिकल डेली डायरी थी मैंने उससे बहुत हेल्प मिला, उसको ही रिवाइज कर लिया. तो ये भी आप हैबिट डाल सकते हो कि डेली आपकी क्लिनिकल डायरी हो सकती है, राइट?
Now if I talk about fundamental of nursing from 24th, yes, आज के दिन से you will be starting your fundamental of nursing classes. And today in this orientation session, आज के दिन हम क्या करेंगे, will see most important, will discuss the important unit or topic of the fundamental nursing foundation from the revised INC syllabus. नाउ इफ यू लास्ट मी, अगर हम बात करें क्या हमें नर्सिंग फाउंडेशन की पूरी बुक पढ़ना जरूरी है टू स्कोर गुड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन? द आंसर इज नो. यस, जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू कवर एवरी चैप्टर, एवरी यूनिट, एवरी टॉपिक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन बुक. All you have, in order to score good, all you have to focus on high yield topic, high yield topics or most frequently asked topic. Yes. Now अब ये चीज भी मुझे बहुत बाद में पता चली. पहले क्या था, अब आदत वही है 12th वाली की, सब कुछ पढ़ लेना है. पूरी बुक है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की, पूरी बुक है हमारे पास फिजिक्स की, पूरी बुक को अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ना. बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, राइट, ड्यूरिंग आवर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम ही होता था. अब नर्सिंग में क्या है कि एक तो टाइम नहीं है हमारे पास, लिमिटेड टाइम है. वी हैव इन्वॉल्व्ड इन सो मच थिंग, असाइनमेंट बनाने हैं, फाइल कवर करनी है, क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करनी है, देन उसके बाद आपकी क्लासेस अटेंड करनी है. तो समवेयर हमें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, राइट. अब मेरे पास नर्सिंग फाउंडेशन की इतनी सारी यूनिट है और मेरे पास दो बुक है. सिस्टर नैंसी, आई वाज यूजिंग दैट टाइम. सिस्टर नैंसी 2 वॉल्यूम में आती थी और वो वॉल्यूम छोटी बुक थी बट वो बहुत बहुत मोटी थी. अब उसे अगर मैं पढ़ने बैठूंगी, पूरी 2 बुक कंप्लीट करना, और मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम मिला है पढ़ने के लिए और अगले दिन एग्जाम है, सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. वो देख के ही मुझे इतनी एंजाइटी हो जाएगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करती रहूंगी, डिप्रेशन में चली जाऊंगी और कभी भी कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी उस बुक से. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप डे 1 से कंसिस्टेंट हो, कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, देन इट इज गुड, यू कैन कवर एवरीथिंग. बट द रियल गोल्डन रूल टू स्कोर गुड, आपको जो है अच्छे, आपके स्कोर भी अच्छे आने चाहिए, आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी जो है एक नॉलेज भी गेन हो. उसके लिए हमें फोकस करना होता है जो सबसे ज्यादा आस्क्ड टॉपिक होते हैं. हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर बारी एक्सपेक्टेड है, आएंगे ही आएंगे, राइट. कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बट वो एग्जाम में बहुत ही लेस प्रायोरिटी पे पूछे जाते हैं. ये हम सबको पता है. अभी नहीं पता तो अब आपको पता होना चाहिए that in every subject there are some unit, or in unit there are some topic that consider as very high yield topic which are more probable, that have more probability to come in your examination, right, जिसे हम बोलते हैं most frequently asked topic. अब ये हमें most frequently asked topic कहाँ से मिलेंगे? The best answer is PYQ, previous year question से, राइट. सबसे पहला सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दूसरा सोर्स है जैसे मान लीजिए कुछ यूनिट नई ऐड हो जाती है, तो उस केस में आपके जो लिस्ट ऑफ टॉपिक आपके टीचर आपसे शेयर करते हैं, लाइक इन नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ फॉर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिट एंड द टॉपिक टू यू ऑल, जो आपको एक बार रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड होता है, हाई वेटेज होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, वो क्वेश्चन आ जाए, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आज हम इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड देन यूल बी हैविंग योर प्री असेसमेंट टेस्ट. आई बी शेयरिंग हाउ यू कैन अटेम्प्ट द प्री असेसमेंट और उसकी गाइडलाइन क्या होगी, राइट. चलिए, सो अगर हम बात करें नर्सिंग फाउंडेशन क्लासेस की, सो लेट अस डिस्कस के नर्सिंग फाउंडेशन क्लासेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और हम क्या क्या कवर करेंगे डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में एंड डे 6 में. टिल डे 6 we'll be having fundamental of nursing classes क्योंकि थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, राइट. सो डे 2 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट हाउ वी कैन write down such type of how we can write down the answer of such type of questions, right. If you have any query, then you are most welcome to submit your query and I'll be really happy to answer your query, right. Then again day 3 में आपका पोस्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, फॉलोड बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन, एंड डे 3 में हम जो अपने प्री असेसमेंट टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस भी शेयर करेंगे.
and day 4 likewise will be having day 5 and day 6. Now this is very important. ये है हमारे काम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज. अब जैसे मैंने बोला आपके पास होना चाहिए सिलेबस. नाउ अगर यहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि क्या मुझे ये सारे टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखना है, सो यू हैव टू थिंक स्मार्ट नाउ. हार्ड वर्किंग आप सब हो. यस आई एग्री कि यू ऑल आर हार्ड वर्किंग, बिकॉज जब नर्सिंग ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाता है दैट वी आर वेरी हार्ड वर्किंग. अब हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्टनेस या स्मार्ट वर्किंग भी ऐड करनी है. अब स्मार्ट वर्किंग कैसे ऐड करेंगे? स्मार्ट वर्किंग ऐड करने के लिए अब यहाँ पे ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप या फिर आपके कभी टीचर आपको बताएंगे, रादर देन कि आप उसको नोट डाउन करें, आपके पास हमेशा सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके बैग में. आपके एक फोल्डर बना लो, वो फोल्डर आपके बैग में हमेशा प्रेजेंट हो. कॉलेज का जो बैग है सिलेबस उसमें होना चाहिए फोल्डर के अंदर. सिलेबस में आपने जो जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं उसको हाईलाइट कर लिया. हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं जब कॉलेज में थी, जब उस टाइम पे मैं दूसरे अपने कलीग की बुक्स देखी थी, काफी हाईलाइटेड थी, तो मैं सोचती थी ये हाईलाइट क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, हाईलाइटर पढ़ना तो पूरा ही है. बट मुझे बाद में समझ में आया कि जब वो रिवाइज करने बैठते हैं तो पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसी पोर्शन को देखना है जो हाईलाइटेड कर रखा है. सो हाईलाइटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव अ हाईलाइटर and a printout photocopy of this syllabus, right? Very important. तो सिलेबस में आपने ये सारे पॉइंट को पहले हाईलाइट करना है, ताकि आपको हमेशा जब भी आप सिलेबस देखो कि मेरा क्या क्या कवर हो गया, जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो कवर होना बहुत जरूरी है. ठीक है जी, चलिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1, ये नर्सिंग फाउंडेशन आपकी 2 पार्ट में है. पार्ट 1 की अगर हम बात करें, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. ऑलवेज रिमेंबर देर आर सम यूनिट जो कि बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अगर मैं बात करूं डिफाइन हेल्थ, सबसे ज्यादा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. डिफाइन हेल्थ 2 नंबर में पूछा जाता है. क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आई एम श्योर इस पे ऑलरेडी एक वीडियो जो है मिस चेतना मैम ने ऑलरेडी दिया हुआ है. यू कैन रेफर दैट वीडियो, बट स्टिल यू हैव इनफ आइडिया कि अगर हम लिखे क्वेश्चन आया, जैसे हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आया है, डिफाइन हेल्थ, अब जब भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आई है, तो मेक श्योर 2 डेफिनेशन तो आप लिखो, एक डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखी. अब जब भी डेफिनेशन लिखो, ट्राई टू ऐड, इसका जो है ऑथर का नाम लिख लो, या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हमने वहां पे कोड दे दिया कि ये WHO की डेफिनेशन है, ये यूनिसेफ ने दिया है, लाइकवाइज. तो ये बेटर रहेगा. अगर नहीं लिख सकते तो दैट्स ओके, बट मिनिमम 2 डेफिनेशन यू हैव टू राइट डाउन इफ क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट. डिफाइन हेल्थ में 2 डेफिनेशन लिखोगे, क्लियर है? ठीक है. तो डिफाइन हेल्थ इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको स्किप नहीं करना है. इस यूनिट में ये जो सारे पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए, ये सारे पॉइंटर्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं. एक और चीज आई वुड लाइक टू शेयर, कभी भी किसी चीज को रटो मत. ऐसा होता है ना, एंड में कल एग्जाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रटने बैठ गई, फिर वर्ड टू वर्ड मैंने जाके लिख दिया. वही जो है मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मेरी फ्रेंड ने, मैंने क्या किया, पूरा पैराग्राफ लिखा 1 पेज का, मेरी फ्रेंड ने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे, ऐसे लिस्ट डाउन करके 4-5, ये 5 पॉइंट लिखे हैं बस. मुझे जो है 3 मार्क्स मिले, मेरी फ्रेंड को जो है 5 मार्क्स मिले. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो रिलेवेंट लिखे हैं. मैंने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो रिलेवेंट है, बाकी सिर्फ कहानी लिखी है मैंने. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रादर देन, अब जो है आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग द आंसर टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट्स एन आर्ट. आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, राइट. कई बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल, आपको जो है आपने पढ़ा नहीं है. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेम आपने जो है ये वाला क्वेश्चन है, स्टेट 4 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, आपने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा. बट यू शुड नो, बीइंग फ्रॉम नर्सिंग, आपने जब स्टार्ट की थी, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो ये कॉमन है, आप लिख सकते हो कि कौन से फैक्टर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को. कौन से आ सकते हैं? फिजिकल आ सकता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर आ सकता है, ये सारे फैक्टर्स आप बना के लिख सकते हो. देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स. एवरीथिंग डिपेंड अपॉन, आपका लिखना जरूरी है. नंबर 1 खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी है.
जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी कंसेप्ट आ रहा है, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स, राइट। सेकंड, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहे, बुक में क्या थे। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, राइट डाउन योर ओन एक्सपीरियंस, राइट। सो डिफाइन हेल्थ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड देन मास्लो हायरार्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ काफी बार पूछा गया है। हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम भी आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज द क्वेश्चन जो कई बार आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट यूनिट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अगर हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में देखें तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किस में आता है, जनरली हॉस्पाइस के ऊपर पूछ लेते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन हॉस्पाइस और पैलिएटिव केयर के ऊपर पूछ लेंगे, राइट। कई बार आपसे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। डिस्क्राइब प्राइमरी लेवल ऑफ केयर, डिस्क्राइब सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ केयर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये कभी भी भूल से भी स्किप नहीं करना। श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन नर्सिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन जब डिफाइन आए 2 मार्क्स में आए, मिनिमम 2 डेफिनेशन लिखना है। रोल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, डिस्कस द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी ये, अदरवाइज ये 5 मार्क्स का आता है। नर्सिंग इज अ प्रोफेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, 5 मार्क्स में आता है, ये आपको जस्टिफाई करनी है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। क्वालिटी ऑफ नर्सिंग लिस्ट डाउन करने के लिए आ जाएगा, आपको 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दैट लिस्ट डाउन द क्वालिटी ऑफ नर्सेस। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के पार्ट में भी आ जाता है, जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, डिफाइन नर्सिंग एंड लिस्ट डाउन द क्वालिटीज ऑफ नर्सिंग एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन गया। तो ये यूनिट में आपको ये सारे पॉइंट कवर करने ही करने हैं। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इतना मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज नहीं है। द रीजन वाई आई हैव पुट दिस टॉपिक अंडर दिस हेडिंग बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो, पढ़ के समझ लो कि क्या क्या किस किस पैराग्राफ में क्या क्या बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन में मैंने 5 पैराग्राफ पढ़े हैं, उसके पैराग्राफ को याद रख लो। फर्स्ट पैराग्राफ में ये वाली बात चल रही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात चल रही है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है वॉर के टाइम पे, इस तरीके से याद कर लो और उनको अपने वर्ड्स में लिख दो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप बोलोगे मैम सारे ही टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, सो यस, सारे ही नर्सिंग फाउंडेशन की जितने भी टॉपिक है, सबसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, जो यूनिट के अंदर से सब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हुए हैं। कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्टेड है 100%, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अकेला। इफेक्टिव मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो यू शुड बी अवेयर कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है। देन कई बार जो है 3 या 5 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में जो आपको पढ़ना है वो है लीगल गाइडलाइन। पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीवाईक्यू में, लीगल गाइडलाइन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसकी लीगल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड। यू नो व्हाट, इफ आई टेल यू कि हार्डली आपको जो है 10 मिनट लगेंगे ये सारा याद करने में, यू विल बी अमेज्ड, बट यस 10 मिनट में ये सारा याद हो जाएगा आपको। विल डिस्कस एवरीथिंग। अगर मैं वाइटल साइन की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर वाइवा एंड योर प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइवा के लिए और प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमेशा याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल तो आता ही है आपको शायद
टीपीआर जो है पेशेंट को लेने के लिए बोल दिया जाए, ये आ जाएगा आपका। वाइवा में पूछा जाएगा वाइटल साइन। इसमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो गाइडलाइन आ सकता है आपका, राइट। ये गाइडलाइन आ जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि गाइडलाइन क्या होती है वाइटल साइन लेने की। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट विद हाइपरथर्मिया आ सकता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट while taking the vital signs, while assessing the vital signs, ये आ सकता है। टाइप्स ऑफ फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है हमें। टाइप्स ऑफ फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर शॉर्ट में भी आ सकता है या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन रेमिटेंट एंड इंटरमिटेंट फीवर, ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया, राइट। इक्विपमेंट एंड मिलन इज द यूनिट जिसे हम लेस प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला था, देर विल बी सम यूनिट इन द नर्सिंग फाउंडेशन विच वी कैन गिव सम लेस प्रायोरिटी, बट इट इज नॉट लाइक कि हमें बिल्कुल छोड़ देना है। इसमें केयर ऑफ रबर आइटम पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल सेटिंग, ये यूनिट आपको स्किप नहीं करनी है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, फॉर योर प्रैक्टिकल एंड फॉर योर एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। आपका जब वाइवा होगा तो बिल्कुल ध्यान रखना हैंड हाइजीन के स्टेप, हैंड वॉशिंग के स्टेप। बिल्कुल जब वाइवा हो रहा है उससे पहले सारे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप में बैठ के हैंड, या हॉस्टल में जो रहते हैं या डे स्कॉलर जो भी है उस दिन हॉस्टल स्टे कर लेना, क्योंकि मैं जनरली यही करती थी। जब वाइवा होता था उससे एक दिन पहले हम लोग हॉस्टल स्टे करते थे एंड सारा वाइवा के लिए प्रिपेयर करते थे, याद करते थे। हैंड वॉशिंग के स्टेप याद रखने, पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, हर बच्चे से बाय डिफॉल्ट पूछे जाते हैं हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, राइट। एक और वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये भी बहुत कॉमन है, ओके। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आपको क्या देखना है, ये आपका ऊपर इक्विपमेंट एंड लिनन का पार्ट है। बैरियर नर्सिंग कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा शॉर्ट आंसर में। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं, राइट। कॉन्करेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन पे शॉर्ट आंसर आ सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा ट्राई टू मेक अ टेबल, टेबल करके आप डिफरेंस उसको क्रिएट बताओगे कि क्या डिफरेंस है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन टर्मिनल डिसइंफेक्शन में। देन मेडिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल एंड मेडिकल हैंड वॉशिंग, एंटीसेप्सिस, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल। अब एक क्वेश्चन जो काफी पूछा जा रहा है नाउ अ डे, जिसको हम शेयर डिस्कस भी करेंगे आगे डे 2 की क्लासेस में, रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ये पूछा जा रहा है। या फिर रोल ऑफ नर्स इन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इन प्रिवेंटिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी लॉन्ग आंसर में 8 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन, जिसमें पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पेन में से 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेन के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। जैसे डिफाइन नर्सेज रोल वाइल, ये डिफाइन पेन, असेसमेंट पेन का, रोल ऑफ नर्स इन पेन मैनेजमेंट, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंसिंग पेन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट, पेन को कैसे मैनेज करोगे, नर्सिंग इंटरवेंशन बतानी है, राइट। देन बेड मेकिंग के ऊपर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है वाइल बेड मेकिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर बेड के ऊपर पूछा जा सकता है, डिवाइडेड बेड बना रहे हो तो क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, एंड बेड मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा एंड प्रैक्टिकल टॉपिक, राइट। बेड मेकिंग मिल सकता है आपको। कंफर्ट डिवाइसेस से आपके ऊपर पूछा जा सकता है कंफर्ट डिवाइसेस का लिस्ट, या फिर जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंफर्ट को। पेन मैनेजमेंट एक सेपरेट शॉर्ट नोट में आ सकता है, और ये हमने डिस्कस कर लिया नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बेड मेकिंग। सो पेन, बेड मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ के नहीं जाना है। Promoting safety in healthcare environment, this is important because now recently whatever health related campaign which are started by most of the organization, they are more focusing, they are patient centric, they are focusing patient safety first, right। पेशेंट सेफ्टी को सबसे पहले रखा गया है हर ऑर्गेनाइजेशन के कैंपेन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लीन एंड सेफ केयर के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। रिस्ट्रेन में टाइप और डेफिनेशन आ सकता है।
ये देखिए, दिस इज व्हाट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे आप प्रोवाइड करोगे पेशेंट को क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, राइट। तो इसके कुछ पॉइंटर्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। हैंड हाइजीन हो गया, एरिया को डिसइंफेक्शन रखना है, राइट, क्लीनिंग रखनी है प्रॉपर। आपको जो है मेक श्योर करना है कि हर वार्ड, हर एरिया में पेशेंट हैंड हाइजीन, पेशेंट और स्टाफ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हैंड हाइजीन, राइट। देन हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज में जनरली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है वाइल एडमिशन एंड वाइल डिस्चार्ज। अब आपका पेशेंट, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है दैट यू हैव एडमिटेड दिस पेशेंट, व्हाट विल बी द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, उसका यूनिट प्रिपेयर करना है, इनिशियल असेसमेंट करना है, ये सारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करनी है। देन पेशेंट डिस्चार्ज होके चला गया, उसके बाद यूनिट की केयर कैसे करनी है, वो क्वेश्चन आ सकता है। सो जनरली इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन एंड डिस्चार्ज से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कई बार। इसमें प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग द बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी, राइट। पेशेंट एजुकेशन लेस प्रायोरिटी देंगे इस यूनिट को। एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आती है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव पेशेंट एजुकेशन, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। फर्स्ट एड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड 100% आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट एड से। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है इससे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, फर्स्ट एड की डिफाइन करना एंड क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, सिमिलर लाइक नर्सिंग एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, वो उस तरीके से, लेकिन याद करना है, कंटेस्ट अलग है, राइट। पॉइजनिंग इज इंपॉर्टेंट, कई बार पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वुंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हीलिंग, वुंड हीलिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये याद रखना है। स्नेक बाइट के ऊपर क्वेश्चन आया है। बैंडेजिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वाइवा, फॉर प्रैक्टिकल एज वेल, राइट। फ्रैक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, उसके बुलेट पॉइंट याद रखिए कि नर्सिंग केयर क्या रखेंगे अगर पेशेंट आपके पास फ्रैक्चर में आया है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा पॉइजनिंग में, स्नेक बाइट हो गया। तो ये जनरल चीजें, डोंट वरी कि इतनी सारी चीजें पढ़नी है, हम जनरल डिस्कस करेंगे, सब अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट। नाउ दिस वाज अबाउट फॉर नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1। अब नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 पे आते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब यहाँ पे हमेशा फिजिकल असेसमेंट की बात होती है। डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, रोल ऑफ नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन को अकेले क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर में। नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर आपको एक पूरा प्रोसेस बनाने के लिए दे सकते हैं। फीवर के ऊपर नर्सिंग प्रोसेस आता है, याद रखिएगा। फीवर का नर्सिंग केयर प्लान याद करके जाना है फीवर के ऊपर। हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। देन न्यूट्रिशनल नीड, लाइकवाइज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जब क्लिनिकल पोस्टिंग में थी वहां पे मैंने राइल्स ट्यूब फीडिंग का प्रोसीजर किया। अब यही एग्जाम में आ गया। राइल्स ट्यूब फीडिंग इज वन ऑफ द प्रिफर्ड नर्सिंग प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मुझे मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर में, ईयरली था, सेमेस्टर वाइज नहीं था, दोनों ही साल राइल्स ट्यूब फीडिंग मिला था फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। मुझे थर्ड ईयर में हेल्थ टॉक मिला था, फोर्थ ईयर में मुझे ट्रिक्योस्टमी सक्शनिंग मिला था, एंड इंटर्नशिप जब चल रहा था तब भी कुछ असेसमेंट हुआ था। उस टाइम पे मुझे मैकेनिकल वेंटिलेटर की सेटिंग का कुछ केयर मिला था, केयर ऑफ पेशेंट विद मैकेनिकल वेंटिलेटर मिला था। आई स्टिल रिमेम्बर क्या क्या था, राइट। सो ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि इसमें हर बार ही फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में हर बार गलती होती है, फाइनल एग्जामिनर के सामने गलती होगी, राइट। बट मेक श्योर कि आपसे ना हो, वेल प्रिपेयर्ड रहिए एग्जाम, प्रैक्टिकल के लिए भी प्रैक्टिस करके रखिए, राइट। तो राइल्स ट्यूब फीडिंग जो भी मैंने क्लिनिकल में किया वही अगर मुझे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आई बी वेरी, मुझे कंसेप्ट क्लियर होगा कि बिफोर प्रोसीजर क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूरिंग प्रोसीजर मैंने क्या किया, आफ्टर प्रोसीजर मैंने क्या किया, राइट। यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन डिफरेंट मेथड ऑफ फीडिंग, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल फीडिंग। कई बार राइल्स ट्यूब फीडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। राइल्स ट्यूब फीडिंग का जो है प्रोसीजर डिस्कस करना है, तो वहां पे आपको बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखना होगा।
देन हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ओरल केयर पेशेंट का आएगा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो जरूर मिलेगा वहां पे आपके वार्ड में, ओरल केयर मिल जाएगा, राइट, स्पंज बाथ मिल जाएगा पेशेंट का आपको, प्रैक्टिकल में हेयर केयर भी मिल जाता है, क्लियर। तो इसमें आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें स्पंज बाथ हो गया, ओरल केयर हो गया, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ केयर, अगर ओरल केयर नहीं प्रोवाइड किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन ओरल केयर वाज माय फर्स्ट ईयर में, जब हम लोग हेल्थ टॉक देते हैं तो ओरल केयर, हेल्थ टॉक नहीं, इट वाज लाइक प्रेजेंटेशन था क्लास को, तो ओरल केयर मेरा प्रेजेंटेशन था, राइट। एलिमिनेशन नीड अगर यूनिट की बात करें तो इसमें एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नाउ अ डे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, पेशेंट को फोलीज कैथेटर लगा हुआ है और इस पेशेंट को फोलीज कैथेटर लगा है, तो हाउ यू कैन प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, nursing responsibility for specimen collection and principles of specimen collection, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑक्सीजनेशन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यहाँ से भी नर्सिंग केयर प्लान आ सकता है, याद रखिएगा नर्सिंग केयर प्लान 8 नंबर का आ सकता है बनाने के लिए। अगर आपके पास नर्सिंग केयर प्लान आना है, अगर उसमें मेंशन नहीं है कि कितना नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, तो मिनिमम 3 नर्सिंग डायग्नोसिस तो लिखनी ही लिखनी होगी, ठीक है, मिनिमम 3। और नर्सिंग केयर प्लान जब बनाते हैं तो हाँ जी बिल्कुल वो टेबल फॉर्म में ही बनाना है, लिखना नहीं है, पूरा टेबल फॉर्म में बनाना है, ठीक है जी। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड डेफिशिएंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इंटरवेंशन फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो व्हाट विल बी द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहां मैंने लिखा है ना 100% वो यूनिट बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन है, मेडिकेशन को स्टोर करना है तो प्रिंसिपल और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टोरिंग और मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, वेरियस रूट, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट, वेरियस रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ensuring मेडिकेशन सेफ्टी, 100% क्वेश्चन बार बार लगातार 4 बार पीवाईक्यू की फॉर्म में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाएगा असेसमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद अनकॉन्शियस आ जाएगा, या फिर कई बार इस तरीके से आ जाता है दैट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द फिजिकल मोबिलिटी ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट, इस तरीके से आ जाएगा, या फिर केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट ये आ जाएगा सिंपली कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, केयर प्रोवाइड करनी है, व्हाट ऑल केयर यू विल प्रोवाइड, ठीक है। केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग की अगर आप बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका कुबलर रॉस का मॉडल पूछ लिया जाएगा, थ्योरी ऑफ ग्रीफ एंड लॉस कुबलर रॉस मॉडल ये पूछ लिया जाता है, राइट। देन शॉर्ट नोट्स ऑन केयर ऑफ डाइंग टर्मिनली इल पेशेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। सो लमसम दीज आर द इम्पोर्टेंट यूनिट एंड द टॉपिक, important unit and the important topics of nursing foundation which being a nursing student, first year nursing student, ये टॉपिक तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है जी। जो जिस यूनिट पे 100% लिखा है वो यूनिट बिल्कुल नहीं स्किप करनी, वो यूनिट को पूरा पढ़ना है, जहां पे हमने टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक हमें एक बार गो थ्रू करना है। ये अब क्लैरिटी हो गई। आपने क्या करना है, आपका सिलेबस होगा आईएनसी का, उसका फोटोकॉपी करना है, फोटोकॉपी में ये सारे यूनिट का जो जो टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। फिर जब भी सिलेबस देखेंगे मेक श्योर करना है कि ये हमने पढ़ लिया हो, ठीक है जी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर सब्जेक्ट प्री असेसमेंट टेस्ट एंड आई एम श्योर यू ऑल नो द अप्रोच एंड पैटर्न, क्योंकि ये फंडामेंटल क्लासेस आपकी सबसे लास्ट क्लास है एंड आप पहले भी प्री असेसमेंट टेस्ट दे चुके हो। सो इट इज बेसिकली जो उसका लेवल है वो बेसिक टू मीडियम है एंड व्हाई यू हैव टू अटेम्प्ट दिस प्री असेसमेंट टेस्ट इज बेसिकली टू जज योर नॉलेज। इसमें इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस फॉर्म में है एंड
सारे ही क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उसी टॉपिक पे बनाए गए हैं। तो जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, रीड द रैशनल, जब आपको ये पेपर मिल जाएगा उसके रैशनल को भी पढ़ना, क्योंकि रैशनल से और आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई ये जो एमसीक्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी नॉलेज असेसमेंट पे। So there will be 50 questions and you have to attempt in one go. Try to attempt in one go. ऐसा नहीं करना कि खोला आपने टैब और उसको 10 मिनट के लिए किया फिर बंद कर दिया। 60 मिनट मीन्स complete 1 hour you have to give to attempt this 50 MCQ। एंड आपका डे 3 पे हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस वीडियो देंगे। एंड वेयर यू कैन एक्सेस दिस टेस्ट, आपको जो है मेन्यू बार पे जाना है, वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट पे क्लिक करना है एंड देन अंडर स्कॉलरशिप टेस्ट सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट पे क्लिक करना है, राइट। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से यस, हमारा डे 1 है एंड अगेन सेम एंथुसियाज्म के साथ हमें डे 6 तक क्लासेस करनी है अपनी। एंड रिमेंबर बीइंग, जहां जब भी हमें पता चलता है ना, ओके दीज आर द अप्रोच, दीज आर द टेक्निक्स दैट वी हैव टू यूज or implement in our life to basically modify it, to modify our life in a better way, right। आपको आज पता चल गया कि भाई सिलेबस का फोटोकॉपी लेना है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जहाँ पे आप सारे नोट्स लिख सको। तो ये सारी चीजें जब पता चल गया, स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। वेट मत करो कि मंडे से स्टार्ट करूंगी, बीच में आज सैटरडे है, संडे है, मंडे से शुरू करूंगी। नो, डोंट जस्ट डू लाइक दिस। कभी भी ये दिमाग में आने ही मत दो कि अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, या फिर अभी तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने मेंटली खुद से सोचते हैं कि अच्छा हाफ एन आवर वेट करते हैं, 8 o'clock से स्टार्ट करेंगे, अभी तो 7:30 हो रहा है। जहां जब भी आपको पता चल जाए उसी मोमेंट से स्टार्ट करना है, राइट। एंड मेक श्योर वन थिंग, इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि व्हेन आई ज्वाइन माय बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग, तो मुझे फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला गया समझने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेकेंड ईयर में थोड़ा अच्छा लगने लग गया, तो सेकेंड ईयर में कॉलेज लाइफ एंजॉय करी, लेकिन आगे का बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड दैट टाइम द सोशल मीडिया वाज नॉट दैट मच एक्टिव लाइक टुडे, राइट। आज तो इतना एक्टिव है कि हर कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है, बट उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था कि क्या करना है, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचा, बस रैंडमली ब्लाइंडली जो है चले जा रहे हैं। एंड मोमेंट व्हेन हमने इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप के बाद वी हैव नो क्लू बट वी हैव टू डू। सो वी आर आस्किंग आवर सीनियर, जो सीनियर हमारे ऑप्ट कर रहे थे, वी आर ऑल्सो गोइंग देयर, हम भी वही कर रहे थे। तो उससे क्या था कि बहुत लिमिटेड स्कोप पता चल रहा था, या तो आप गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर लो, या फिर प्राइवेट कॉलेज में कर लो, या फिर आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कर लो, या प्राइवेट कॉलेज में जो है आप एज अ ट्यूटर के फॉर्म में वो कर सकते हो जॉब। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आप फर्स्ट ईयर में हो एंड यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउअडेज, यस, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जॉब सिर्फ ये 3 एरिया में लिमिटेड देखना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट जो है सूटेबल है उन पोजिशन के लिए, उस जॉब के लिए। ऑल यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपको जो है करना क्या है, वेदर यू हैव टू गो फॉर, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया। अब मैंने क्या किया, उसी से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने लग गई मैं, राइट। दिस इज द रीजन वाई यू आर हेयर। हम लोग आपके साथ हैं, सारे जितने भी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के टीम मेंबर हैं, टू प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर। आपको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं, ताकि आपको, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, नॉर्सेट क्लियर करना है, बिकॉज एम्स इज लाइक वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन वांट्स टू ज्वाइन द एम्स, राइट। हर किसी को जो है एम्स को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। एंड यू हैव टाइम, यू हैव बहुत ज्यादा टाइम है कि आप अभी से ही अपने माइंड से सेट करके चल रहे हैं कि आपका टारगेट है एम्स, वेदर दिल्ली और कोई भी स्टेट हो, राइट। एम्स आपका टारगेट है, तो आपने अभी से स्टार्ट कर दिया। आपने अपने 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो इससे क्या होगा, जब आप अप्लाई करेंगे, अब आई एम 100% गारंटी यू विल गेट द सिलेक्शन इन एम्स विद वेरी गुड रैंक, right? So you need to start thinking on yourself कि after completing this nursing degree what next, आपको क्या करना है, whether you have to settle down in abroad, आपको abroad जाना है, NCLEX के लिए प्रिपेयर करना है, और whether you have to do the masters in nursing, आपको MSc भी करनी है। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। एंड फॉर दिस
द रीजन वी ऑल आर हेयर विद यू ऑल. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी फॉर्म में क्वेरी है, डू सबमिट योर क्वेरी. वी आर रियली हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी, राइट. सो विद दिस आज का सेशन आपका यही खत्म होता है. एंड अगेन विल सी यू ऑल टुमारो. एंड हमारा डे 2 के क्लासेस में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड.